so far no official source either from India or Iran had commented on this story. We only got this Indian MEA reaction on last week when India said that this whole speculation is wrong and India is very much part of it, and there are continuous process of inspection and review going on, and we are awaiting an appointment of a nodal authority from Iranian side. And now when Iranian Deputy Minister of Transport and Rail has also commented on this, that India is very much part of it, and there are vested interests behind those media speculation, then one must put to rest all the rumor and speculation between Iran and Indian friendship and relation that has been bringing on in the last 2 weeks. Abhishek, very quickly help our viewers understand why is the Chabahar port and the Chabahar-Zaidan railway line so important for India and the region at large, including Iran and Afghanistan? Okay, Ramesh, for two reasons. First, that it would be a very strategic commercial interest, serving India's commercial interest, to enter Iran, but through Iran to the other Central Asian countries like Turkmenistan, Kazakhstan, and also since our trade via Pakistan to Afghanistan is very much, prohibited because of certain political and other dynamics. So trade to Afghanistan will be facilitated through this Chabahar port, where India is helping to lay that Chabahar-Zaidan road, railroad, which will be further put across to Afghanistan on Zanjar region. So this will be a master game changer in India's commercial interest in Central Asia, Iran and Afghanistan. Absolutely. On that note, Abhishek Jha, thank you so much for bringing our viewers with the latest news on the India-Iran front. Appreciate it. Right, time now for international news in our World Wrap segment. Chinese scientists are ready for the launch of China's first Mars exploration mission after completing multiple integrated rehearsals recently, an official of the mission said. Known as Tianwen-1, the first Mars probe of China is scheduled in late July or early August, according to the China National Space Administration. In a recent interview with the state broadcaster China's Central Television, Zhang Yu, deputy director of the Mars probe, said that scientists have conducted joint tests on multiple systems of the Mars mission at all levels and ready for the launch. Compared with the mission to the moon, the Mars mission is more difficult and full of challenges, as the probe would take nearly 7 months to land on Mars. North Korea's leader has sacked officials building a hospital after they pressed the public for contributions, media reported. The country's state-run television KRT on Monday aired a video footage of leader Kim Jong-un visiting a construction site of the Pyongyang General Hospital. During his latest visit to the site, Kim fired a group of project managers called the Construction Coordination Commission for failing to allocate a proper budget and supplying equipment and materials from ordinary citizens. Leader Kim ordered the Pyongyang General Hospital to be built by the 75th anniversary of the founding of the ruling Workers' Party in October, calling it a top priority in improving public health in the face of the novel coronavirus. Russian President Vladimir Putin named a new acting governor to head Russia's far eastern region of Khabarovsk on Monday after the previous regional head was arrested on murder charges, sparking a wave of protest. At least 10,000 people demonstrated in Khabarovsk on Saturday to demand Moscow release Sergei Fergal, a member of the ultra-nationalist Liberal Democratic Party. Fergal was detained on July 9th and flown to Moscow to face charges over the murder and attempted murder of multiple businessmen 15 years ago. He denies wrongdoing. Protests broke out soon afterwards and have continued for over a week. Putin on Monday formally removed Fergal from his post and appointed Mikhail Degtyaryov, 39, a lawmaker and also an LDPR member, to take over as the acting head of the region. French President Emmanuel Macron said on Monday he was hopeful a compromise could be reached over a European Union recovery plan. Macron also said that talks had advanced in the EU summit. Macron made the comment as he arrived for the fourth day of the summit. German Chancellor Angela Merkel said extraordinary situations also require extraordinary efforts and hoped the remaining issues to close the deal would be solved soon. After 3 days of haggling over a plan to revive economies throttled by the COVID-19 pandemic, European Council President Charles Michel is expected to put forward a new basis for a deal to bridge the competing demands of North and Southern Europe.
All right, to sports now. The International Cricket Council has confirmed the ICC Men's T20 World Cup in Australia has been postponed due to the ongoing COVID-19 pandemic. Cricket's apex body has held multiple meetings in the last few months in order to ascertain the best possible outcome, but came to the said conclusion in the latest one on Monday. The tournament was due to take place between 18th October and 15th November. The next Men's T20 World Cup is now scheduled to be held in October and November 2021, with another in 2022. The ICC has also announced that the 50-over Men's World Cup in 2023 in India will move from February-March to October-November. And the Ballon d'Or for the world's best players will not be awarded in 2020 because of a lack of sufficient fair conditions created by the coronavirus pandemic. The decision seems somewhat bizarre given that all of Europe's major football leagues except France have been able to complete their campaigns. Barcelona star Lionel Messi won a record 6th Ballon d'Or last year, taking him past rival Cristiano Ronaldo, who has 5 to his name. The cancellation of prestigious prize means Cristiano Ronaldo remains one behind Messi. The award was set up in '56 and is the most prestigious individual trophy in football. The Ballon d'Or is presided over by France Football, having been a FIFA award from 2010 to 2015. However, the two companies then split and football's governing body created the FIFA The Best Award, which has run parallel to the Ballon d'Or since 2016. And that's a wrap on Newsnight. But news continues here on DD India and DD News. You can catch all the latest updates on our social media, mobile and digital platforms. Thanks for watching. Bye. Drop, cover, hold. Hold. Hey Akshay, has everyone understood? Good, very good. Let's do it again. When an earthquake strikes, go to an open place. If you cannot, then first drop down, Cover your head, hold on to something tightly, or go to a safe corner and cover your head. Learn to protect yourself during an earthquake. Your wisdom lies in your preparedness. Always ensuring your safety. NDMA. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IBM के CEO अरविंद कृष्ण से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में निवेश के लिए ये है बेहतरीन अवसर। सरकार घर से काम करने की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए है प्रतिबद्ध। IBM के CEO ने कंपनी के भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना के बारे में दी जानकारी। राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायक की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पार्टी के साथ धोखा करने का लगाया आरोप, तो वहीं भाजपा ने अपने को इस मामले से किया अलग थलग। असम में हुई लगातार बारिश, बाढ़ की स्थिति फिर से हुई गंभीर। 5 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर, अब तक 85 लोगों की मौत। वहीं बिहार में भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात। भारत में 7 लाख मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के संक्रमण से 22,664 मरीज हुए स्वस्थ। कई अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश ने भी कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का किया फैसला। ईरान ने भारत को चाबहार जहेदान रेल परियोजना से बाहर रखने की खबरों का किया खंडन। उप परिवहन और रेल मंत्री सईद रसौली ने इस तरह की खबरों को बताया निहित स्वार्थों से प्रेरित। कहा, प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार प्रोजेक्ट पर हुई महत्वपूर्ण प्रगति।
दुनिया भर के देशों की कोरोना के खिलाफ जंग जारी। विश्व में 1,46,41,40,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 6,08,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भीड़। फ्लोरिडा में लगातार छठे दिन संक्रमण के 10,000 से भी ज्यादा मामले आए सामने। आईसीसी ने कोरोना के कारण इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को किया स्थगित। 2021 में अक्टूबर और नवंबर में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। अगले 3 साल आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट का होगा आयोजन। और इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 113 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज हुई 1-1 से बराबर। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले बेन स्टोक्स बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश के लिए ये बेहतरीन समय है। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में तकनीकी क्षेत्रों में हो रहे निवेश और समर्थन का स्वागत किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए उठाए जा रहे हैं और इन कदमों की भी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से जहां दुनिया में मंदी देखी जा रही है, वहीं भारत में तेजी से विदेशी निवेश बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि यहां वैश्विक स्तर का सप्लाई चेन विकसित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश एकीकृत डेटा और तकनीक आधारित स्वास्थ्य तंत्र विकसित कर रहा है ताकि सबको किफायती दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक टूल विकसित किया जाए जिससे भारत में रोगों को लेकर सटीक भविष्यवाणी और समीक्षा की जा सके। वहीं आईबीएम के सीईओ ने आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। बड़ी राजनीतिक खबर राजस्थान से, जहां राजनीतिक अनिश्चितता का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर लगाई गई याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। कल अदालत ने इसे आज तक के लिए टाल दिया था। सचिन पायलट और 19 विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि बागी विधायक किसी भी तरह सरकार गिराने या बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर सवाल उठाते हुए उसकी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित होने पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि नोटिस देना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। उनका कहना था कि अभी इस नोटिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए इस नोटिस पर याचिका की सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संकट के लिए पहली बार स्पष्ट रूप से सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सचिन ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। वहीं भाजपा ने इस मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का आरोप लगाया है। और अब बात बारिश और बाढ़ के कहर की। असम में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। बाढ़ के कारण 24 जिलों के 2,254 गांव के 24 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा 1,09,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि भूमि जलमग्न है। बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही मारे जाने वालों की संख्या 85 हो गई है और भूस्खलन के कारण इस मौसम में अभी तक 111 लोगों की जान चली गई है। राज्य के 5 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा अन्य जिलों में धनसिरी, जियाभराली, कोपिली, बेकी और खुशियारा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ग्वालपाड़ा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 4,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद प्रभावित जिलों में बारपेटा, मोरीगांव और धुबरी शामिल हैं। 276 राहत शिविरों में लगभग 48,000 लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले ग्वालपाड़ा जिले में एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य जारी रखते हुए कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक
पहुंचाया है। और गुवाहाटी से हमारे साथ कमल वोरा जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। कमल, ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं पिछले 2 दिनों से बारिश में कोई कमी नहीं हुई है, उसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारी की गई है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को राहत और बचाव लोगों तक पहुँचाई जा सके? हेलो जी, बिल्कुल। देखिए लालचंद जी, आपने जिस तरीके से बताया है, अभी भी लगभग असम के 10 ऐसे जिले होंगे जहां पे ब्रह्मपुत्र के साथ साथ बाकी जो सारे कुछ नदियां हैं, जो धनसिरी, कपिली, जो कुशियारा, जो भी बेकी रिवर, ये सभी तमाम ऐसे रिवर से जो लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी डेंजर लेवल के ऊपर है। हालांकि पिछले 2 दिनों से जो बारिश भी यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाटर लेवल जो हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था, और इसका स्तर थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा था, फिलहाल उसमें अभी फिलहाल स्टेबिलिटी आ गया है। और बारिश जिस तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं अभी, वो स्तर फिर से बढ़ने का भी आशंका यहाँ पे बन गया है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो सुधार देखने को मिला था, ओवरऑल जो ये फ्लड इफेक्टेड लोगों की संख्या में जो थोड़ा सा कमी देखने को मिला था, इसमें भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गया है। तो सिचुएशन अभी भी फिलहाल डेंजर है, अभी भी यहाँ पे गंभीर बना हुआ है। जहां तक यहाँ पे राहत कार्य का सवाल है, ये फिलहाल जोरों से चल रहा है, ये इसमें कोई कमी नहीं आया है। कल के दिन में भी कम से कम 125 नावों को इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगाया गया है। खास करके ग्वालपारा जिला जो सबसे आज के डेट पे जो सबसे वर्स्ट हिट है, ज्यादा पीड़ित है, वहां पे एनडीआरएफ के बहुत सारे तादाद में वहां पे लोग राहत कार्य चला रहे हैं। तो लगभग हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश जारी है कि लोगों को कम यहाँ पे मुश्किल सामना करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस फ्लड की वजह से तो इरोजन यहाँ पे एक फ्लड के साथ साथ इरोजन जो एक बहुत बड़ा समस्या है, इससे काफी लोग प्रभावित है। माजुली जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वॉल का माना जाता है, तो एक वॉल हेरिटेज साइट हमको से मानते हैं, तो उसमें इरोजन के वजह से काफी वहाँ पे नुकसान हुआ है, काफी एरिया पानी में बह गया है। तो इस तरीके का मुमकिन फिलहाल यहाँ पे मुश्किल सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि बारिश कितना होता है और सिचुएशन में क्या सुधार देखने को मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बिहार में कल हुई भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण राज्य के 9 जिलों में 32 प्रखंडों की 156 पंचायतों के 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इस बीच नेपाल में स्थित नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जमा हुए जल की निकासी के लिए गंडक बैराज से 4,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ से दरभंगा जिले के 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पूर्वी चंपारण के सिसवनिया गांव में पानी के घुस जाने से लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर शरण ले रखी है, जिसे देखते हुए इसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। समस्तीपुर और पटना के शहरी इलाकों में सड़कों पर पानी देखा जा सकता है। वाल्मीकि नगर के जंगलों से हिरणों का निकल कर आना जारी है, तो वहीं पश्चिमी चंपारण में भी मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया गया। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सलमान, इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर, और क्या अभी भी वहां पर राज्य में कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, और कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर हैं? लालचंद, ये जो कल दोपहर से काफी तेज बारिश हुई है, खासतौर से नारायणी का जो जलग्रहण क्षेत्र है नेपाल में, वहां पर काफी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से पानी छोड़ना पड़ा है गंडक बैराज से। और जो राज्य प्रशासन ने जो सूचना दी है उसके अनुसार 4.5 लाख से अधिक 4,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से बहुत सारी जगहों में उसका असर आज और कल दिखेगा, जिसके लिए इन जिलों को जो इलाके हैं उत्तर पश्चिम के, और यहाँ तक कि सारण है, छपरा है, सुपौल है, इन जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ आज जो है नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। और अगर बात करें बाकी नदियों के जलस्तर की, तो उस वजह से नारायणी की बाढ़ से बागमती, गंडक और महानंदा नदी में भी पहले से ही उफान है।
और ये जो ये इलाका है उत्तर पश्चिम का, या फिर कहें मधुबनी है, दरभंगा है, यहाँ पर काफी असर आ गया है। तो बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है, हालांकि पटना में थोड़ा थमी हुई है, इस समय धूप निकली है, लेकिन बाकी जगहों पर रुक रुक के वर्षा अभी भी हो रही है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो गई है, खासतौर से वो लोग जो अपना घर बार छोड़ करके तटबंधों पर या किसी ऊंचे स्थान पर आ गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कोरोना की। देश में अब तक 7 लाख से भी अधिक लोग कोरोना के संक्रमण को हराकर ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों का दर बढ़कर 62.61% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,664 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय संक्रमण के 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। अब तक इस महामारी से मारे जाने वालों की संख्या 27,497 हो गई है। देश में मृत्यु दर हालांकि लगातार घट रही है और ये 2.45% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए। अब तक 1,40,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,268 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी तथा 378 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। और इस बीच प्रमुख दवा कंपनी माइलेन ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए डेसरेम के नाम से रेमडेसिविर की जेनेरिक दवा लॉन्च की है, जिसका उत्पादन बेंगलुरु में किया जा रहा है। कंपनी ने इस दवा की जानकारी और उपलब्धता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 91 जो कि ISD कोड है और उसके बाद जो नंबर है वो 7829980066 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। माइलेन ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के संदिग्ध या गंभीर रूप से पीड़ित अस्पताल में भर्ती वयस्क और बच्चों के इलाज के लिए इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर से दवा के बारे में जानकारी भी ली जा सकेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि डेसरेम को बाजार में उपलब्ध करा दिया गया है और मांग के मुताबिक पूरे देश भर में इसकी आपूर्ति की जाएगी। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक संक्रमण वाले जिलों में हफ्ते में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसमें एक दिन रविवार का होगा, जबकि दूसरा दिन शनिवार या सोमवार का हो सकता है, जो कि जिला आपदा प्रबंधन समिति तय करेगी। इसके अलावा राज्य भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जो कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 22 से लेकर 24 जुलाई तक वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस साल के सम्मेलन का विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जुलाई को वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान वायुसेना के वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती का जायजा के साथ ही अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। पहले बैच के भारतीय वायुसेना के 5 राफेल लड़ाकू विमानों के जुलाई 2020 के आखिर में भारत पहुंच जाने की संभावना है। विमान को 29 जुलाई को मौसम के मुताबिक वायुसेना स्टेशन अंबाला में शामिल किया जाएगा। पहले बैच के इन 5 विमानों का औपचारिक अधिष्ठापन समारोह 20 अगस्त को किया जाएगा। वायुसेना के एयर क्रू और ग्राउंड क्रू ने अपने अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणालियों सहित विमान पर व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। ईरान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें भारत को चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना से बाहर रखने की बात की गई थी। ईरान के उप परिवहन और रेल मंत्री सईद रसौली ने कहा है कि वो खबरें निहित स्वार्थों से प्रेरित थीं।
इससे पहले ईरानी मंत्री ने ईरान में भारतीय राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र को चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना पर चल रहे आपसी सहयोग की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया था। पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रतिबंधों से पैदा हुए हालात के बावजूद चाबहार बंदरगाह परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक भारतीय कंपनी 2018 से पोर्ट का संचालन कर रही है और वहां यातायात लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ ही अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए चाबहार पोर्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल फोन लाइन पर। अमृत, ये आखिर क्यों इस तरह की खबरें आई और फिर अब जब ईरान ने इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया है तो क्या बिल्कुल ये मान लिया जाए कि ये बिल्कुल भ्रामक खबर थी जिसे किसी ने अपने स्वार्थ के चलते फैला दी थी, जैसा कि वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं? जी, वहाँ के जो डेप्यूटी रेलवेज मिनिस्टर हैं रोड्स के और रेलवेज के सैयद रसौली, उन्होंने कल मुलाकात की इंडियन एम्बेसडर गद्दाम धर्मेंद्र के साथ और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जहां उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिसमें इंडिया को एक्सक्लूड किया गया चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट। ऐसी बात पिछले हफ्ते कुछ इरानियन ऑफिशियल्स ने कही थी, ऐसी खबरें थी कि इरानियन ऑफिशियल्स ने कही हैं कि इंडियन रेलवेज की इरकॉन जो कंपनी है IRCON उसकी फंडिंग की डिले की वजह से और यूएस सैंक्शंस की वजह से अब ईरान अपने 400 मिलियन फंडिंग के साथ खुद उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। पर कल की इस मुलाकात के बाद ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि भारत चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट में है अभी। आपको याद होगा 2016 में जब ये एग्रीमेंट साइन हुए थे अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में कि एक तो पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए, ऊपर सेकेंडली इस जो प्रोजेक्ट है रेलवे प्रोजेक्ट, इसमें इरकॉन इंडियन कंपनी भागीदारी करेगी प्रोजेक्ट के लिए और इस जो गवादार पोर्ट को डेवलप करना और जाहेदान प्रोविंस को कनेक्ट करना रेलवे के थ्रू और उसके साथ आगे रोड नेटवर्क के आगे सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना। तो अब इस क्लैरिफिकेशन के बाद ये क्लियर है कि इस पोर्ट जो कि सिस्तान बालूचिस्तान में गेटवे है सेंट्रल एशिया को, इसमें भारत की भागीदारी रहेगी रेलवे नेटवर्क में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगले खबर की तरफ और बात करते हैं दुनिया में कोरोना के मामलों की, जहां महामारी ये लगातार फैलती ही जा रही है। पूरे विश्व में इस वक्त 1,46,41,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 6,08,000 से भी ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका इस वायरस के संक्रमण से प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है और यहाँ 38,23,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,40,000 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई है। देश के कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी रहने के बाद अब कोरोना के परीक्षणों में फिर से तेजी लाई जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के संक्रमण के मामलों पर चिंता जताने के बाद लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग जांच केंद्रों पर पहुंचे। संक्रमण की स्थिर दर को खतरा मानते हुए प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए ताकि सामुदायिक संक्रमण का खतरा कम हो सके। यही वजह है कि लॉस एंजलिस में काफ़ी दूरी तक कोरोना जांच कराने के लिए कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। और उधर टेक्सास में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डलास में कोविड टेस्ट के लिए एक नया केंद्र बनाया गया है, जहां अपनी जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। यहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्सास के एक अस्पताल में मार्च से लेकर अब तक 1 वर्ष से कम आयु के 85 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस बीच फ्लोरिडा में कल लगातार छठे दिन संक्रमण के 10,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए, जिसने प्रशासन की चिंता को और बढ़ा दिया है। हालांकि गवर्नर रॉन डिसेंटिस का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आपातकालीन कमरों में ऐसे मरीजों की आमद कम देखने को मिली है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच भी मियामी बीच पर लोगों का जाना बदस्तूर जारी है, पर सड़कों पर लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं।
और इस बीच कोरोना वायरस के वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए जा रहे पहले ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। वायरल वेक्टर से बनी वैक्सीन सुरक्षित और वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता वाली पाई गई है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपे ट्रायल के नतीजे में कहा गया है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और एंटीबॉडी और टी सेल इम्यून के प्रति रिस्पॉन्स दिखाया है। लेकिन शोधकर्ताओं ने आगाह किया है कि प्रोजेक्ट अपनी प्रारंभिक चरण में है। ये ट्रायल 18 से लेकर 55 साल के 1077 स्वस्थ लोगों पर हुआ है। ADZ 1222 नामक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एस्ट्राजेनेका कंपनी की मदद से विकसित किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सितंबर के अंत तक इस प्रायोगिक वैक्सीन की 10 लाख डोज को तैयार किया जा सकेगा। साथ ही इस वैक्सीन के साल के अंत तक मिल जाने की संभावना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के लिए बन रही वैक्सीन पर चल रहे शोध में हुई प्रगति का स्वागत किया है। संगठन के आपातकालीन कार्यक्रमों के प्रमुख मार्क रयान ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को सफल ट्रायल के लिए बधाई दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर और काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि यह पहले दौर के ट्रायल का परिणाम है, हमें बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया में इसका परीक्षण करना है। और कोरोना वायरस वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए जा रहे पहले ट्रायल के नतीजे आ गए। वायरल वेक्टर से बनी कोरोना वायरस वैक्सीन दिए जाने पर वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। साथ ही इसे सुरक्षित भी बताया गया है। इसके साथ ही अब इसे अगले चरण के ट्रायल के लिए भी ओके कर दिया गया है। इस बीच ब्राजील में भी कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। सौ पौलो के गवर्नर जोआओ डोरिया ने कहा है कि चीन की सिनोवैक कंपनी द्वारा विकसित वैक्सीन का परीक्षण आज से शुरू कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को 90 दिनों के अंदर खत्म कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षण सफल होते हैं तो अगले साल की शुरुआत में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। सिनोवैक ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे चरण की ब्राजील में शुरुआत करेगी। ब्राजील में इस वक्त कोरोना वायरस से 21,18,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच कोरोना महामारी के चलते बंद हुई वॉशिंगटन में नेशनल आर्ट गैलरी कल खुल गई। हालांकि संग्रहालय में आने वाले दर्शकों के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। उन्हें यहां आने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा और इसके अलावा मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। लॉकडाउन के बाद सामान्य होती जिंदगी में इस मशहूर संग्रहालय में आने के लिए कई लोग बेहद उत्साहित दिखे। फिलहाल इस संग्रहालय में तय सीमा के तहत ही दर्शकों के आने की अनुमति है और इसका एक हिस्सा ही लोगों के लिए खोला गया है। रुक करते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका ने चीन पर म्यांमार की संप्रभुता को कमतर आंकने का आरोप लगाया है। ये आरोप चीन सीमा से सटे म्यांमार के कचिन प्रांत में चीन की कार्रवाइयों के बाद लगाया गया है। म्यांमार में अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स जॉर्ज एन सिबले ने एक आलेख में कहा कि कचिन प्रांत में चीन अनियमित केले के बागान को प्रोत्साहन देकर मत्स्य पालन के गैर सीमांकन और इसी तरह के अन्य कामों के जरिए म्यांमार की संप्रभुता से खेल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ने खनन और वानिकी क्षेत्र में अनियमित निवेश और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में मदद किया है। चीन के द्वारा बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे और विशेष आर्थिक क्षेत्र से म्यांमार का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, जिसका फायदा चीन को हो रहा है। साथ ही उन्होंने म्यांमार से होने वाली मानव तस्करी में चीन का हाथ बताया। इसके साथ ही अमेरिकी राजनयिक ने चीन समर्थित लेटपाडोंग तांबे की खान से म्यांमार में गंभीर पर्यावरण संकट की भी बात कही। साथ ही उन्होंने चीन द्वारा चलाए जा रहे अरबों डॉलर के अवैध दवा व्यापार का भी जिक्र किया। म्यांमार स्थित चीनी दूतावास ने इन आरोपों का हालांकि खंडन किया और कहा कि बयान पड़ोसियों के साथ वैमनस्यता फैलाने का प्रयास है। खबर खेल के मैदान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण ये विश्व स्तरीय टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला लिया गया। इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आयोजित होना था। इस साल के T20 वर्ल्ड कप के आगे बढ़ने के बाद आईसीसी ने अगले 2 वर्ल्ड कप की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है।
अब साल 2021 में अक्टूबर और नवंबर में 7वें T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। इसके बाद साल 2022 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही 8वें T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। इसका फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। फिर साल 2023 में अक्टूबर और नवंबर के ही महीने में वनडे वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका फाइनल मुकाबला 26 नवंबर को खेला जाएगा। और इधर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ को 113 रन से हरा दिया है। इसी के साथ इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। मैच के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 312 रन के जवाब में कैरेबियाई टीम अपनी दूसरी पारी में 198 रन बनाकर आउट हो गई। वेस्टइंडीज़ के लिए ब्रुक्स ने 62 और ब्लैकवुड ने 55 रन की पारी खेली। और इसके साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।